آداب، یہ اعتماد کی خبریں سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ اسرائیلی فورسز نے پناہ گزی کیمپوں کو مقتل گاہ بنا دیا۔ اندرون 24 گھنٹے مزید 25 فلسطینی شہید، 70 سے زائد زخمی۔ وقف ترمیمی بل ناقابل قبول۔ تلنگانہ کے مذہبی اور سیاسی قائدین، علماء کرام نے بل کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ اسے مسترد کرنے کا کیا فیصلہ۔ ملک بھر میں جوش و خروش سے منایا گیا رکشا بندھن تہوار۔ بہن سے جدائی پر KTR کا جذباتی ٹویٹ۔ اور 2 سالہ بچی کو درندہ صفت ملزم نے بنایا حفظ کا نشانہ۔ راجستھان کے جودھ پور میں شرمناک واقعہ۔ حماس نے جنگ بندی مذاکرات کے لیے اپنی شرائط پیش کر دیں۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے جنگ بندی مذاکرات میں پیش کی گئی نئی تجاویز کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے مستقل جنگ بندی سے انکار پر مبنی حالیہ بیانات سے ہم آہنگ قرار دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے دورہ مشرق وسطیٰ پر تل ابیب پہنچنے سے کچھ دیر بعد حماس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ مذاکرات میں کسی اہم پیش رفت کی امید کم ہوتی جا رہی ہے۔ بیان میں حماس کا کہنا تھا کہ امریکہ، قطر اور مصر کی ثالثی میں جنگ بندی معاہدے پر اختلافات کم کرنے کے لیے 2 روزہ مذاکرات میں پیش کی گئی نئی تجاویز موصول ہوئی ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے پناہ گزی کیمپوں کو مقتل گاہ بنا دیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 25 فلسطینی شہید اور 70 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق دہشت گرد اسرائیلی فورسز نے غزہ میں پناہ گزی کیمپوں کو مقتل گاہ بنا دیا ہے۔ صہیونی فوجیوں کی بمباری کے نتیجے میں 24 گھنٹوں میں مزید 25 فلسطینی شہید اور 70 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی افواج کی مسلسل بمباری کے باعث المغازی کیمپ سے لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ غزہ میں ہر سمت موت کا رقص جاری ہے۔ مظلوم فلسطینیوں کے لیے کوئی محفوظ جگہ باقی نہیں رہی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اسکولی بچوں کے ساتھ راکھی تہوار منایا۔ انہوں نے بچوں کو راکھی بھی باندھی اور ان سے باتیں بھی کی۔ اس دوران وزیر اعظم کی کلائی راکھی سے بھری ہوئی تھی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے انہوں نے ہم وطنوں کو رکشا بندھن کی مبارکباد دی۔ ایک لڑکی نے وزیر اعظم کو بہت ہی خاص راکھی باندھی۔ اس راکھی میں خصوصی پیغام کے ساتھ تصویر بھی تھی۔ دراصل اس راکھی پر مودی کی آنجہانی ماں کی تصویر تھی اور اس پر ماں کے نام ایک درخت کا پیغام لکھا ہوا تھا۔ پھولینا سنبھائی راکھی رولی اور مٹھائی سب سے تھالی خوب سجائی، باندھے بھائی کی کلائی پر دھاگا، بھائی سے بہن لیتی ہے وعدہ، راکھی کی لاج بھیا نبھانا، بہن کو کبھی بھول نہ جانا۔ بہت شبھ کامنائیں، بہت آشیرواد بیٹا۔ سبھی دیش واسیوں کو رکشا بندھن کی شبھ کامنائیں۔ آپ بہت اچھے۔ کیا فوٹو ہے یہ؟ ایک پیڑ ماں کے نام۔ اچھا، بہت بڑھیا بنا ہے تو نے۔ آؤ بیٹا۔ بھائی بہن کی مقدس محبت کا تہوار رکشا بندھن ملک میں جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ ہند جگدیپ دھنکر، وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھائی بہن کے اس تہوار پر عوام کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مبارکبادی کے پیغام دیے۔ صدر جمہوریہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ رکشا بندھن کے پرمسرت موقع پر میں تمام ہم وطنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کرتی ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں کے درمیان محبت اور باہمی اعتماد کے جذبات پر مبنی یہ تہوار تمام بہنوں اور بیٹیوں کے تئیں پیار اور احترام کے جذبات کو ابھارتا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر وزیر اعظم نریندر مودی نے ہم وطنوں کو رکشا بندھن کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تہوار بھائی اور بہن کے درمیان بے پناہ محبت کی علامت ہے۔ پرارتھنا ہے کہ مقدس تہوار آپ کے رشتوں میں نئی مٹھاس لائے اور آپ کی زندگی میں سکھ، خوشحالی اور خوش قسمتی لائے۔ راہل گاندھی نے ایکس پر بہن پرینکا گاندھی کے ساتھ اپنی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، بھائی اور بہن کے درمیان اٹوٹ پیار اور محبت۔ اس تہوار رکشا بندھن کی تمام ہم وطنوں کو بہت بہت مبارکباد اور نیک خواہشات۔ پرارتھنا ہے کہ تحفظ کا دھاگا آپ کے مقدس رشتے کو ہمیشہ مضبوطی سے جوڑے رکھے۔
सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पैगाम में कहा कि रक्षाबंधन के मुक़द्दस त्योहार पर सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने कहा कि अगर तलबा और नौजवान कौमी सतह पर होने वाले हालात हुब्बुल वतनी से मुताल्लिक़ उमूर से बाखबर न होंगे तो मुल्क को इंतशार का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने बांग्लादेश की सूरत हाल का हवाला देते हुए कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात जैसे मसले को उठाते हुए तलबा ने पूरे मुल्क को ख़तरे में डाल दिया था और अफरा तफरी पैदा कर दी गई थी। गरचे कि इनका मुतालबा हकीकी था, ताहम वज़ीर मौसूफ़ ने इस तहरीक के मफादात और इससे मुल्क को हुए नुकसान पर सवाल उठाया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इन मसाइल के बारे में नौजवानों और तलबा में बेदारी पैदा करने में नाकामी के नतीजे में बांग्लादेश में इस तरह का बहरान पैदा हुआ। इस पस मंज़र में संजय ने हिंदुस्तानी नौजवानों और तलबा पर जोर दिया कि वो चौकस रहें, कौमी मसाइल पर मुसलसल बेदार रहें और मुल्क को तकसीम करने की कोशिश करने वाली ताकतों से बाखबर रहें। उन्होंने मंचिरियाल ज़िले के श्री विद्या रानिया आवास विद्यालय की नई इमारत के संग बुनियाद के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए बांग्लादेश को मिसाल के तौर पर लेते हुए कौमी मसाइल के बारे में तलबा और नौजवानों में शऊर बेदारी पैदा न करने के खतरात से वाकिफ करवाया। रियासत राजस्थान के जोधपुर में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। जोधपुर के देवनगर थाना इलाके में 2 साल की मासूम बच्ची की इस्मत रेजी की गई और उसके बाद दरिंदा सिफत मुलजिम ने लड़की को मंदिर के पास फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। मुतालिका एसीपी अनिल कुमार ने कहा कि लड़की का खानदान जोधपुर में भीख मांगकर गुजारा करता है। ये लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। वाक़े की शाम लड़की के माँ बाप मंदिर के बाहर भीख मांगने के लिए बैठे हुए थे, जबकि अपनी बेटी को इनकी झोंपड़ी में छोड़ गए थे। मुमकिन है कि इस दौरान मुलजिम उसे चॉकलेट या टॉफियां खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और जुर्म का इर्तिकाब किया होगा। इतवार की सुबह मामूल के मुताबिक तरकारी फरोख्त करने वाली खातून जब मंदिर के करीब पहुंची तो उसने लड़की को वहां खून में लुत्फ़ पड़ा हुआ देखा। उसने फौरी तौर पर मुतासरा के माँ बाप को इस बात की इत्तला दी। मौके पर पहुंचने वाले माँ बाप ने बताया कि लड़की रात से लापता थी। वो उसे ढूंढ रहे थे लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। बादशाह पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तेलंगाना के मजहबी और सियासी कायदीन और उलमा इकराम और दानिशवरों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुजवज़ा वक्फ़ तरमीमी बिल की न सिर्फ मुखालिफत बल्कि इसे मुस्तरद करने का फ़ैसला किया है, जो इस वक्त मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए जांच के तहत है। पीर के रोज़ तेलंगाना सेक्रेटरीट में तेलंगाना हुकूमत की मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के ज़रिए तलब की गई मीटिंग के दौरान मुमताज़ मजहबी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों, कानूनी माहिरीन, सरकर्दा उलमा, सहाफ़ियों और दीगर मोअज़्ज़िज़ अफराद ने मुजवज़ा वक्फ़ तरमीमी बिल की मुखालिफत में इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया। 2 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली मीटिंग में वक्फ़ बिल की मुख्तलिफ मुतनाज़ा शक़ों और वक्फ़ के इदारे पर इनके असरात पर तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने राय ज़ाहिर की कि तजवीज़ सिर्फ एक तरमीम नहीं बल्कि मुजवज़ा कानून को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की कोशिश है। उन्होंने इसे वक्फ़ इमलाक के कंट्रोल, इंतज़ामिया और इंतज़ाम में मदाखलत करके मुल्क भर में वक्फ़ इदारों को ख़त्म करने की साजिश करार दिया। मुस्लिम कायदीन ने ख़दशा ज़ाहिर किया कि मुजवज़ा तरमीम अगर नाफिज की गई तो वक्फ़ इमलाक की तबाही का बाइस बनेगी। मीटिंग से खिताब करते हुए शब्बीर अली ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बीजेपी की ज़ेर क़यादत हुकूमत को बिल को जेपीसी को भेजने पर मजबूर करने में मौसर तरीके से अपोजिशन की क़यादत की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 8 अगस्त को लोकसभा में बिल के पेश करने से पहले इंडिया ब्लॉक से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अरकान पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाकर फौरी कार्रवाई की। इजलास में अमीर जामे निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद, अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना जाफ़र पाशा उस्सामी, जमीयत उलमा के सदर मुफ्ती क़यासुद्दीन रहमानी, आहसन बिन मोहम्मद अल-हमूमी, इमाम शाही मस्जिद, मुफ्ती आज़म ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आदिलाबाद की एक लड़की की मदद की जो मां की खुदकुशी के बाद बेसहारा हो गई थी। हफ्ते की शब निर्मल जिले के बिलतरोड़ा की रहने वाली 26 साला गंगम्मा ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद इसकी बेटी 11 साला दुर्गा तनहा हो गई। मां की आखिरी रसूमात के लिए वो भीख मांगने पर मजबूर थी। चीफ मिनिस्टर ने इनके इल्म में इस मामले के आने के बाद जिला कलेक्टर अभिलाष अभिनव को हिदायत दी कि वो लड़की की तालीम, तिब और दीगर ज़रूरियात की तकमील करें।
जिसके बाद कलेक्टर ने हर तरह की मदद को यकीनी बनाया। कबल अज़ीं रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने इंसान दोस्ती का मुजाहरा करते हुए मां से महरूम लड़की की तमाम जिम्मेदारी कबूल करने का वादा करते हुए उससे वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की। लड़की का बाप इसको और उसकी मां को छोड़कर चला गया था, जबकि इसकी मां ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मां की आखिरी रसूमात के लिए चंदा जमा करने के दौरान किसी ने लड़की का वीडियो ले लिया और इसे वायरल कर दिया, जिस पर कलेक्टर ने तहसीलदार के जरिए आखिरी रसूमात का इंतजाम करवाया। एमपीडीओ अब्दुल समद ने बताया कि इस वाक़े का इल्म होते ही तहसीलदार को वजीर मौसूफ ने फ़ोन करते हुए 1 लाख रुपए इनको इस लड़की के लिए भेजे। कलेक्टर ने भी अपनी तरफ से 10,000 रुपए की माली इमदाद की। ये रकम सरपंच के पास रखवाई गई। वजीर मौसूफ ने अपने इस वीडियो कॉल जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया में लड़की को मुफ्त तालीम की तमाम सहूलत फराहम करने और शादी तक की जिम्मेदारी लेने का वादा किया। उन्होंने कहा कि वो हर माह अखराजात के लिए रकम भिजवाएंगे, रहने के लिए मकान भी फराहम किया जाएगा। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए लड़की की हिम्मत बंधाई और कहा कि वो जल्द ही इससे मुलाकात करेंगे। रियासती वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने 10 साल में 26,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि हमने 8 माह में 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए। बजट में कर्ज माफी के लिए 26,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए और काबीना ने ज़र कर्ज माफ करने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। बीआरएस ने पहले 5 साल में 16,000 करोड़ रुपए और आखिरी 5 साल में 11,900 करोड़ रुपए खर्च किए। हमने सिर्फ 8 माह में यकमुश्त में 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए। 2 लाख से ज्यादा कर्ज रखने वाले 8 लाख किसानों को मशवरा दिया कि वो 2 लाख रुपए से जायद की रकम बैंकों को अदा करें। बाकी 2 लाख रुपए कर्ज की रकम हुकूमत अदा करेगी। रियासती वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। సరే కొన్ని ఏదైతే సాంకేతిక కారణాల వల్ల రుణమాఫీ జరగలేదో వాళ్ళకి 100% మేము రుణమాఫీ 2 లక్షల రూపాయల వరకు చేస్తాము అని చెప్పి మరోమారు మేము హామీ ఇస్తున్నాం. ఎందుకు ఆగినాయి? కొన్ని 1,20,000 అకౌంట్లకి ఆధార్ నంబర్లు ఆధార్లో 12 డిజిట్స్ ఉండాలి. కొన్ని 11 కొన్ని 13 డిజిట్స్ ఉండగా అవి సవరించుకోవడానికి మేము ఒక ప్రక్రియ మొదలుపెట్టాం. ఆధార్ నెంబర్స్ వేర్ నాట్ కరెక్ట్. ప్రతి మండలంలో మండల వ్యవసాయ అధికారికి ఆదేశాలు ఇచ్చి ఏ రైతుకైతే రుణమాఫీకి అర్హత ఉండి రాలేదో మీరు వివరాలు తీసుకొని సవరణ చేసి పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేస్తే వెంటనే ఆ రైతుకి రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పి కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా 161,61,000 కేసుల్లో ఆధార్ కార్డులో లోన్ అకౌంట్ లో పేరు వేరువేరుగా ఉన్నాయి. దానికి రైతుల నుంచి కొంత క్లారిఫికేషన్ ఈ మండల అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. వీళ్ళకు కూడా ఆ క్లారిఫికేషన్ తీసుకొని రుణమాఫీ చేస్తాము. అదేవిధంగా 1,50,000 అకౌంట్లలో బ్యాంకు వాళ్ళు ఇచ్చిన వివరాల్లో కొన్ని ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి. బ్యాంకు వాళ్ళకి పంపించి మీరు ఇది కరెక్ట్ చేసుకోండి, మళ్ళీ పంపించండి మాకు, ఇది కూడా మేము కరెక్ట్ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. 4,83,000 మందికి రేషన్ కార్డ్ లేని వాళ్ళకి మండల అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ వాళ్ళ ఇండ్లకు విజిట్ చేసి నిర్ధారించుకొని వాళ్ళకు కూడా వెంటనే రైతు రుణమాఫీ చేయబోతున్నాము. అదేవిధంగా 8 లక్షల అకౌంట్లకి 2 లక్షల కంటే ఎక్కువ రుణం తీసుకున్న వాళ్ళకి, ఉదాహరణకి మీరు 2,10,000 తీసుకున్నారు అనుకోండి, మీరు 10,000 బ్యాంక్ కట్టేసిన వెంటనే మేము 2 లక్షల రూపాయలు ఆ రుణం ప్రభుత్వం పేరు చేసి క్లియర్ చేస్తాము. నేను మీకు వివిధ ఉదాహరణలు ఎందుకు ఇచ్చినంటే, ఎటువంటి సాంకేతిక లోపాలున్నా ఈ ప్రభుత్వం అన్ని రైతు కుటుంబాలకి ప్రతి కుటుంబానికి 2 లక్షల చొప్పున
రుణమాఫీ చేయడానికి కట్టుబడి ఉన్నాం. ఇది ఈ ఎక్సర్సైజ్ కొనసాగుతుంది. डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने गुरुकुल स्कूल्स की तामीर के लिए अराजी के हुसूल और इमारत के बेहतर से बेहतर डिज़ाइन को जल्द से जल्द तैयार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी. उन्होंने आज गुरुकुल स्कूल सोसाइटी के ओहदेदारों के साथ एक आला सतही जायज़ा इजलास तलब किया. इस मौके पर खिताब करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 5,000 करोड़ की लागत से रियासत के 30 मकामात पर 120 गुरुकुल स्कूल्स की तामीर अमल में लाई जा रही है. ये स्कूल इंतहाई असरी नौइयत के होंगे, जहाँ क़याम और ताम के अलावा दीगर सरगर्मियों को भी शामिल किया जाएगा. उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो 29 अगस्त से कबल तलबा की रिहाइश की फराहमी से मुताल्लिक़ चेकलिस्ट तैयार करें. उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के फ़र्ज जारी करवाने की जिम्मेदारी मुताल्लिक़ा ओहदेदारों पर आयद होती है. रियासती वज़ीर ने यह भी कहा कि कई गुरुकुल स्कूल्स किराए की इमारतों में चलाए जा रहे हैं. तलबा की तादाद ज़्यादा होने की वजह से बाज़ स्कूल्स में बैतुल खला और दूसरी सहूलियात का फुक़दान देखा जा रहा है और इस सिलसिले में कई वाक़यात इनके इल्म में भी आए हैं. उन्होंने इन मसाइल को फौरी हल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी. बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामा राव ने राखी त्योहार के मौके पर इनकी बहन कविता के साथ न होने पर अफसोस का इजहार किया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपने एक पोस्ट में तारक रामा राव ने कहा कि इनकी बहन 155 दिनों से जेल में महरूस है. इन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट में कविता को इंसाफ मिलेगा. మా సోదరి కవిత గారు ఈరోజు రక్షాబంధనం తరపున సందర్భంగా మాతో లేకపోవడం బాధాకరమైనప్పటికీ తప్పకుండా వారికి కూడా న్యాయం లభిస్తుందని 155 రోజులుగా ఏదైతే వారు వేదన అనుభవిస్తూ ఉన్నారో తప్పకుండా అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో న్యాయం లభిస్తుందని చెప్పి కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ మరొకసారి ప్రతి సోదరుడికి ప్రతి సోదరికి కూడా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు అభినందనలు. तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से हज हाउस नामपल्ली में हज 2025 के लिए ऑनलाइन दरखास्तों का मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी ने बटन दबाकर इफ्तिताह किया. उन्होंने बताया कि 9 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन दरखास्तों की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है. हज कमेटी ऑफ इंडिया के रहनुमा क़ुतूब के मुताबिक 2025 में हज की सादत हासिल करने वाले आज़मीन से ख्वाहिश की गई थी कि हज सुविधा फ़ोन एप्लीकेशन के ज़रिए अपने फ़ोन से ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करें, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से अदम वाक़फ़ियत की वजह से हज हाउस नामपल्ली में 7 स्पेशल काउंटर्स कायम किए गए हैं. आज़मीन हज इस सहूलत से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं. उन्होंने दरख्वास्त गुज़ारों से ख्वाहिश की कि ऑनलाइन के लिए अपने साथ आधार कार्ड की ज़िराक्स, पासपोर्ट की ज़िराक्स, बैंक पासबुक ज़िराक्स और एक अदद तस्वीर ज़रूर रखें. आज़मीन हज एक कवर में 5 अफराद के नाम शामिल कर सकते हैं. पासपोर्ट की मियाद मुद्दत 15 जुलाई 2006 तक कारकर्द होनी चाहिए. इस इफ्तिताही तकरीब में मुफ्ती सैयद सादिक मुहीउद्दीन फ़हीम, जनाब मोहम्मद लईक, जनाब मोहम्मद मुजीबुद्दीन, अराकीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, जनाब ताहिर बिन हमदान, सदर नशीन तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के अलावा जनाब फ़हीमुद्दीन कुरैशी, सदर नशीन टिमरीज हुकूमत तेलंगाना, जनाब शेख लियाकत हुसैन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, जनाब इरफान शरीफ असिस्टेंट ईओ, जनाब उस्मान मोहम्मद खान सीनियर कांग्रेस लीडर के अलावा आज़मीन हज की कसीर तादाद मौजूद थी. नामपल्ली कोर्ट में फ़ोन टैपिंग मामले में एएसपी भुजंग राव की जमानत मंजूर कर ली गई है. राव ने अपने तिब्बी रिकॉर्ड्स, दिल के इलाज से मुताल्लिक़ तफसीलात अदालत में पेश करते हुए दावा किया कि उन्हें मज़ीद इलाज की ज़रूरत है. सियासतदानों बशमूल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, इनके ख़ानदान, सरकर्दा सनतकारों और दीगर अफराद के फ़ोन टैपिंग करने की मुबैना साजिश के इल्ज़ाम में पुलिस ओहदेदारों की टीम ने राव के शामिल होने के इल्ज़ामात आयद किए थे ताकि तेलंगाना में इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के लिए बीआरएस को मदद की जा सके. तहक़ीक़ात के बाद पुलिस ने 6 मुलज़िमीन बशमूल साबिक़ स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो सरबराह प्रभाकर राव, डीएसपी रैंक के ओहदेदार प्रानीत राव,
एएसपी भुजंग राव, तिरुपतन्ना और मुकामी मीडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव के नाम इस मामले में सामने आए हैं। इस अहदेदार की दरखास्त जमानत कई मरतबा मुस्तरद कर दी गई। राव की जमानत मंजूर करते हुए फर्स्ट एडिशनल सेशन जज ने शराइत आयद की हैं। इस शराइत में मुलजिम को हिदायत दी गई है कि वो GHMC हदूद को पार न करे। तेलंगाना RTC बस में हामिला खातून ने खातून कंडक्टर और बस में सफर करने वाली नर्स की मदद से बच्चे को जन्म दिया। जिंदगी के लिए मदद और इंसानियत का मुजाहरा करने वाली खातून कंडक्टर और नर्स की मुख्तलिफ गोशों से जहां सताइश की जा रही है, वहीं वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने भी इनके लिए नेक जज्बे की सराहना की। तफसीलात के मुताबिक 19 अगस्त की सुबह संध्या नामी एक हामिला खातून गदवाल डिपो से ताल्लुक़ रखने वाली गदवाल वनपर्ती रूट की बस में सवार हुई। वो अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जा रही थी। बस के नाचाहली इलाके के करीब पहुंचने पर इस खातून के पेट में अचानक दर्द होने लगा। खातून कंडक्टर जी भारती, जिसे फौरी तौर पर दूसरे मुसाफिर ने चौकस किया, उसने बस को रुकवा दिया। खातून कंडक्टर ने बस में सफर करने वाली नर्स की मदद से खातून की जजगी की। बादशाह माँ और नौजायदा को 108 एम्बुलेंस की मदद से मुकामी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां दोनों की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। इजरायली फोर्सेस ने पनाह गजी कैंपों को मख्तलगाह बना दिया। अंदरून 24 घंटे मजीद 25 फलस्तीनी शहीद, 70 से जायद जख्मी। वक्फ तरमीमी बिल नाकाबिल कबूल। तेलंगाना के मजहबी और सियासी कायदीन उलमा कराम ने बिल की न सिर्फ मुखालिफत की बल्कि इसे मुस्तरद करने का किया फैसला। मुल्क भर में जोश व खरोश से मनाया गया रक्षाबंधन त्योहार। बहन से जुदाई पर KTR का जज्बाती ट्वीट। और 2 साला बच्ची को दरिंदा सिफत मुलजिम ने बनाया हफज का निशाना। राजस्थान के जोधपुर में शर्मनाक वाकया। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।